Hello students, welcome to the next lecture of History Revision Series. In this lecture we will discuss about various classifications of Indian history. But before that, let me ask you one simple question. How many of you know who wrote History of India for the first time? The answer is James Mill. Let me know in the comment sections who could answer it correctly. So in his book The History of British India in 1817, James Mill classified Indian history into three periods: Hindu period, Muslim period, and British period. Let us analyze the basis of this classification. But before that, let us explore about James Mill first. Who was James Mill? And then you will get to know why he classified Indian history into this classification only, this periods only. So James Mill was the product of industrial revolution. He was the product of industrial revolution. Product of industrial revolution. See, India had been a colony of Britain, and colonialism in India passed through evolved in three distinct phases. These three phases of colonialism is corresponding with the three phases of evolution of capitalism in Britain. The first phase of capitalism was commercial capitalism. Second phase was industrial capitalism, and the third phase was financial capitalism. In the commercial phase or mercantile phase, the objectives of British was to trade with India, to acquire finished products in India and sell in the international markets and acquire as much profit as possible. But in the industrial phase, this objective changed completely. Now the objective was to acquire the raw materials from India, prepare the goods in British factories, and sell these prepared British goods in Indian market and other markets also. But most importantly, Indian market, since Indian market was very large. But before selling that, they must make sure that these products are demanded in India. So they tried to interfere in the traditions and cultures, the education system, etc., and even most importantly, the administration of India, so that they could easily facilitate the movement of raw materials from the far off lands, from the remote areas, and sell the finished products in Indian markets also. We will not go deep into these discussions. We will discuss these things in later in when we will be discussing the when we will be doing modern India. But here I want you, I want to make you aware of the things here. So James Hill was the product of industrial revolution, and the objective of this phase was to acquire as much raw materials from India and sell the finished products in India. So for doing that, the ideology should change also. The Indian culture must change. So the dominant ideology of that time was known as utilitarianism. Utilitarianism is an ideology which is more associated with the industrial phase of capitalism or industrial phase of colonialism in India. Before that, when there was commercial phase or mercantile phase, the dominant ideology was Orientalism, which glorified Indian past and culture. But utilitarianism criticized Indian past and culture and tried to establish that Indian past was backward looking, it was stagnant, it was very downgrading, and tried to project British rule as the progressive rule in India. Having said that, it is now clear that they by classifying Indian history into Hindu period, Muslim period, and British period, he tried to project British rule as
tried to project British rule as a progressive rule in India. Tried to prove British rule as progressive in India. But there was ulterior motive behind this classification also, and that motive was to sow the seeds of dissensions between Hindu and Muslims. The divide and rule, the infamous divide and rule. However, this classification was challenged by nationalist scholars such as R.C. Majumdar and R.G. Bhandarkar and other nationalist scholars in late 19th century, late 19th century and early 20th century. The nationalist scholars challenged the basis of classification on two grounds. The classification by James Mill was challenged by nationalist scholars on two grounds. First, if religion was the basis of if religion was the basis of classification, then why not Christian rule instead of British rule? अगर रिलीजन ही आधार है क्लासिफिकेशन की तो फिर ब्रिटिश पीरियड क्यों, इसको क्रिश्चियन पीरियड कहना ज़्यादा उचित होगा। और दूसरी बात, दूसरी जो ग्राउंड थी चैलेंज करने की, वो थी कि जिसको आप हिंदू पीरियड कहते हैं, तो एंशियंट पीरियड में जो पुराने टाइम है हमारे, तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही तो रूल नहीं किए किए हैं। कई सारे ऐसे भी रूलर्स रह चुके हैं जो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर चुके हैं, जो जैनिज्म को पैट्रोनाइज कर चुके हैं, या कभी आजीविका सेक्ट को भी पैट्रोनाइज करते रहे हैं। तो सिर्फ हिंदू पीरियड कहना ये तो हिस्ट्री को एक डिस्टॉर्ट करने के जैसा हो गया, एक गलत पिक्चर तैयार करने के जैसा हो गया। वहीं मुस्लिम पीरियड जिसको आप कहते हैं, तो मुस्लिम पीरियड किसी एक पीरियड में तो इस्टेब्लिश नहीं हो गई, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुई है। जो नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुई थी, तो साउथ इंडिया में वो 13th 14th सेंचुरी में आकर के इस्टेब्लिश हुई है, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ वर्ड अपनी एक्सपेंशन की। और even in that period also there were many regions in India that was out of a Turkish influence or Afghan influence. So Rajput rulers भी rule simultaneously rule कर रहे थे even during Mughal period. स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जरूर बहुत सारे किंगडम्स थे, बट उन किंगडम्स को अपनी अपनी ऑटोनॉमी मिली हुई थी। तो उनको ओवरऑल मुस्लिम पीरियड भी कह देना, ये भी हिस्ट्री को एक डिस्टॉर्ट करने के जैसा हो गया। तो इन दो ग्राउंड्स पे जेम्स मिल के क्लासिफिकेशन को नेशनलिस्ट स्कॉलर्स ने चैलेंज किया, और बदले में उन्होंने एक मोर सेक्युलर अप्रोच अडॉप्ट की, जहाँ पे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड में क्लासिफाई किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नेशनलिस्ट स्कॉलर्स ने जो टाइम पीरियड है, पीरियडाइजेशन को उन्होंने रिटेन कर लिया। यानी कि वो भी ये नेशनलिस्ट स्कॉलर्स भी मानते हैं कि इंडिया में मेडिवल पीरियड की शुरुआत सक्सेसफुल टर्किश इन्वेजन के साथ हुई, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तराइन में हराया 1191 एंड 1192 में। तो उसके साथ इंडिया में मेडिवल पीरियड की शुरुआत हुई। इस पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन को फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने चैलेंज किया, सबसे पहले डीडी कोसाम्बी, और आगे चल करके आर एस शर्मा ने इनको काफ़ी चैलेंज किया। आर एस शर्मा की जो लॉजिक थी, आर एस शर्मा ने कहा कि सिर्फ डायनास्टिक चेंज होने से क्या होता है, हिस्ट्री जो है सिर्फ रूलर्स की हिस्ट्री थोड़ी होती है।
रूलर्स तो सब, हिस्ट्री तो सबकी होती है, इवन सब्जेक्ट्स की हिस्ट्री भी होती है, लोगों की हिस्ट्री भी होती है। तो सिर्फ डायनेस्टिक चेंज होने से कुछ खास चेंज नहीं होता है, कुछ खास अंतर नहीं होता है, बल्कि जो कोर प्रिंसिपल है, जो सब स्ट्रक्चर है, जो कोर स्ट्रक्चर है, उसमें कब चेंज आ रही है, उन चेंजेस को आधार बना करके हम हिस्ट्री को पीरियडाइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक आधार हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में सामाजिक और आर्थिक आधार को अपनाया। और हिस्ट्री और मेडिएवल पीरियड को उन्होंने फर्दर अर्ली मेडिएवल और लेट मेडिएवल पीरियड में क्लासिफाई किया। अर्ली मेडिएवल की शुरुआत वो कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म की। और इंडियन फ्यूडलिज्म हम आगे चल करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फ्यूडलिज्म अलग से एक लेक्चर ही होगी फ्यूडलिज्म के ऊपर। पर यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको एक बस झलक देना चाहता हूँ कि फ्यूडलिज्म में एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन, इवन सोशल रिलेशनशिप भी है, और जिसमें एक हायरार्की हो जाती है, और कई सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, और वहाँ पे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की डोमिनेंस होती है। तो इन चीज़ों को, इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इमर्ज हुई, ये सारे हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जब पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग पहुंचेंगे, वहाँ पे इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से डील करेंगे। तो अर्ली मेडिएवल और लेट मेडिएवल में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई किया। इस बेसिस को बाद में चल करके सब अल्टर्न हिस्टोरियोग्राफर्स ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया, और आज के टाइम पे हम लोग इंडियन हिस्ट्री को इन चार पीरियड्स में क्लासिफाई करते हैं: एंशिएंट पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड, लेट मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। एक और क्लासिफिकेशन है इंडियन हिस्ट्री की, जो कि मोर आप सब ने इस क्लासिफिकेशन के बारे में कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, कि इंडियन हिस्ट्री को लिटरेरी सोर्सेज के अवेलेबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे तीन पीरियड्स में बांटा जाता है जनरली हिस्ट्री को: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वैसे पीरियड्स है जहाँ पे हमारे पास नो लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज नहीं है हमारे पास अवेलेबल, जिन पीरियड को जानने के लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री वैसे पीरियड्स हो गए जहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल तो हैं, बट नॉट डिसाइफर्ड, उनको डिसाइफर नहीं की गई है, की जा सकी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन केस में हड़प्पन पीरियड, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट है हमारे पास, बट उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं की जा सकी है, तो लिटरेचर के बेसिस पे हम इस पीरियड के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में एक वो भी पीरियड आती है जहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट तो नहीं है, बट लैंग्वेज है, लिटरेचर है। नो स्क्रिप्ट बट वी हैव लैंग्वेज और लिटरेचर। तो जब स्क्रिप्ट नहीं है, तो लैंग्वेज और लिटरेचर जनरली ऑरली ट्रांसमिशन होती है। तो ऐसे पीरियड को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। वहीं हिस्ट्री पीरियड जहाँ पे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी है एंड इट इज वेल डिसाइफर्ड। तो एक क्लासिफिकेशन लिटरेरी सोर्सेज के अवेलेबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के रूप में हम लोग कर सकते हैं। एक लास्ट चीज जो इस लेक्चर में है, वो है कि प्रोटो हिस्ट्री की अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो जाती है। जैसे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोटो हिस्ट्री होती है, तो प्रोटो हिस्ट्री उन कल्चर्स के लिए भी है, उन सिविलाइजेशंस के लिए भी हैं, उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी हैं जो खुद लिटरेचर उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन वो खुद पढ़ना लिखना भी शायद ना जानते हों, लेकिन उनके बारे में किसी दूसरे लिटरेट ग्रुप, किसी दूसरे ग्रुप की लिटरेचर में उनकी जिक्र है। तो ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे कल्चर को हम प्री हिस्ट्री में ही कंसिडर करते हैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने पीछे पीछे बात की ही थी
कि दो तरह की होती है, जैसे या तो हमारे पास लिटरेचर है बट स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है, जिनको हम पढ़ नहीं सके हैं, या फिर हमारे पास लिटरेचर है पर स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है पर लिटरेचर है, जैसे कि हमारी वैदिक पीरियड है। वहीं एक और क्लासिफिकेशन है प्रोटो हिस्ट्री की, को आर्कियोलॉजी भी अपने तरीके से डिफाइन करती है। आर्कियोलॉजी के हिसाब से प्रोटो हिस्ट्री वो लॉन्ग पीरियड है जहाँ जब हम हमने फूड प्रोडक्शन शुरू कर दी थी, और आयरन टेक्नोलॉजी हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो इन दो फेजेस के बीच की जो भी पीरियड है, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन टू द यूज ऑफ आयरन, ये जो लंबी पीरियड है, ये प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आर्कियोलॉजी के हिसाब से आती है। तो आर्कियोलॉजी के हिसाब से प्रोटो हिस्ट्री में वो न्योलिथिक कल्चर भी आ जाएगी और चालकोलिथिक कल्चर भी आ जाएगी, जो अदरवाइज प्री हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंड आई होप, और कई आप लोगों में कई सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, कई सारे नए लोग भी हैं जो ये पहली बार इन चीज़ों को देख रहे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड share it with your friends. Thank you. See you in the next lecture where we will be discussing about prehistoric period.